हाय गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्सपर्ट चैट सेशन। आज का हमारा जो चैट सेशन है इज़ विद अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और आई थॉट कि एक बहुत ही रिक्वायर्ड सेशन था। आप लोगों के एंड से भी इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि एज फर्स्ट टाइम पेरेंट्स और इवन इफ़ यू आर सेकेंड टाइम पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड जिससे हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे बिहेवियर्स हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत बार हमको अनरीजनेबल भी लगते हैं, बिकॉज वो बता नहीं पा रहे कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, और बी हमारे लिए विदाउट नोइंग कि क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं उस चीज़ को समझ पाना विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट। खास करके इन द करंट टाइम्स जहाँ हम लोग इतना सारा टाइम घर पे स्पेंड कर रहे हैं, इतने सारे और स्ट्रेसेस है। तो इस सेशन के थ्रू हम लोगों ने कोशिश की कि आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे आंसर करें। इस सेशन में मेरे साथ है अस्मिता नागपाल, हु इज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ये एक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन है, और अगर आप आराम से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे टेक अवेज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें पीसफुली आप कैसे हैंडल कर सकते हो उसके बारे में इनपुट्स मिलेंगे। एंड अस्मिता हैज़ बिन सो स्वीट, यानी हम लोगों ने काफ़ी ओवर शूट कर दिया था टाइम, फिर भी शी हैड बिन वेरी पेशेंट, और सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के एंड से आए थे शी ट्राई टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, विच इज़ रियली रियली स्वीट ऑफ हर। मैं उनके सारे हैंडल्स नीचे छोड़ने वाली हूँ। शी इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ इन द सेशन। सो ज़्यादा बात किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन. So first of all, thank you so much for being here. I'm so glad because I myself am a mother to a 3-year-old, and most of the people in my audience are parents or mothers to 2 to 4-year-old kids and first-time parents. So most of us are lost. We are struggling to figure, and especially this age, 2 years onwards is an age where we struggle a little bit more because now the kids have started developing their own personality, and we are constantly torn between what is the right way to deal with them. Should we be strict? Are we being lenient? So that's the constant struggle that most of us have. So I'm so glad that you are here, and as an expert you'll be able to help us through this particular set of challenges. So like I said, we already have a few audience questions, so मैं उसी order में शुरू करने वाली हूँ. But before we do that, I would like you to introduce yourself, ताकि audience also gets to know a little bit about you before we start. Sure. So, hi everyone, I'm Asmita, and I'm a child and adolescent psychologist. And I'm not a parent yet, but where my knowledge is coming from is that I have a master's in psychology, and also I have an advanced diploma in child guidance and counseling. So, along with theory, we have had a lot of practical exposure. I'm also a practicing school counselor. So, that again, every day gives me a lot of exposure to children as well as adolescents. Now, firstly, I think, Prachi, thank you for having me because, like you said, be it first time parents or if even if, you had children before, um, you become a parent, but then a lot of things can be done by intuition. But sometimes, if things are also backed up by science and also a little bit of expertise from, I won't say me, from any child psychologist, it really helps because you get to empower children. And as parents, also, you feel very empowered with a lot of knowledge. So, along the same lines, if you want to connect with me, I mean, if your audience wants to connect with me, they can find me on Instagram. My handle is by the name of Parent in a Pickle. And, if mindful parenting is something that interests your audience, or, how to bring up children in a very happy sort of a way to basically make the world very kind for children, that is what I'm regularly posting about there. I'm very, very active there. And also very simple everyday tips and hacks for parents to make their life also easier and their kids' life also easier. Then I'm very active on stories also, Q&As also. So I'm constantly talking with my followers. You can also DM me anytime, not a problem. But if parents have something, any concern related to parenting, to strengthening their bond with their child, or anything, like children these days have a lot of concerns, be it academic, psychological, emotional. So please feel free to book an individual counseling with me. And for that, you can DM me, you can email me. There's also a link in my bio on Instagram. And so directly click there and you will find me and you can book a session with me. What I'll do is I'll link your Instagram handle as well as I'm not too sure if I should mention your email ID also in the description box, but at least I'll link your Instagram handle there.
So the audience can follow you there also, because I've seen your page. I've been following it since a while now, so I know the day to day, the small tips, which we otherwise might just not kind of come across. So those really help. So the audience can follow you there, and if they want to reach out to you, they'll definitely do it via DM for a one-on-one counseling session. So yeah. So I'm just going to start. ठीक है, like I said, I'm going to keep it a little bit in Hindi, and so that it reaches out to a wider audience. तो सबसे पहला क्वेश्चन, एंड विच इज ऑब्वियसली लाइक आई थिंक द बेसिक क्वेश्चन, वो ये है कि एज पेरेंट्स हाउ डू वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द किड्स या द इमोशंस ऑफ द किड्स, बिकॉज एज आई सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम थिंग फॉर अस ऑल्सो. बहुत सारी चीजें जो बच्चे ऑल्सो दे गो थ्रू, वी ऑल्सो रियलाइज वाइल पेरेंटिंग के देयर आर लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, दे आर ग्रोइंग ऑल्सो, दे आर लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स. तो कैसे, एज इन व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स जिससे हम लोग समझ सकते हैं अपने बच्चों के इमोशंस को बेटर, ताकि जो उनके टैंट्रम्स या नॉट सो गुड टाइम्स है उनको हम थोड़े बेटर तरीके से टैकल कर पाए और एक जेंटल और पॉजिटिव तरीके से टैकल कर पाए. Okay. So see, I understand the anxiety as parents, especially as first-time parents, because it is always said that children don't come with a manual, and I strongly believe that parenting is something that you learn as you go along that journey. तो firstly मैं हर parent को हमेशा यही कहती हूँ, please take out time to communicate with your child. एंड जरूरी नहीं है अगर बच्चा 2 साल का है, 2 साल से छोटा है, थोड़ा बड़ा है, तो कम्युनिकेशन इज नॉट देयर फोर्टे. इतना स्ट्रांगली वो अपने वर्ड्स को यूज नहीं करते. इन दैट केस आई सजेस्ट दैट यू ऑब्जर्व देम, बिकॉज दे कैन नॉट यूज देयर वर्ड्स. वो अपना बिहेवियर यूज करके समझाते हैं व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. So tantrums is something I was expecting also as a question, and it can be very overwhelming. Parents को समझ नहीं आता what is the right thing to do. Firstly, let me put it out there that if your child is showing any sort of tantrums, it is absolutely normal. Do not panic, do not freak out. होता है. And why is it happening? मैं वो भी बता देती हूँ for everyone's peace of mind. See, like I said, वो बच्चे अभी कह नहीं सकते what they want, what they need. So they are showing you. Rest assured, जब उनकी language skills improve होंगी, when they can use their words better, their tantrums will go down. Like you also said कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, they are starting to learn a few things. तो उन्हें चाहिए independence, उन्हें चाहिए control. And parents feel कि अभी तो बहुत छोटे हैं, we also have to maintain some control over them. तो वहाँ पे थोड़ी सी power struggle start हो जाती है. Again, very normal. Both the parties are absolutely right in their place. Children want their independence, और parents को चाहिए कि हम भी बच्चों का पूरा ध्यान रखें. One thing I want to say, you should never do as parents, agar you are feeling there's a tantrum, please do not yell at your child, please do not hit them, because if we try to understand, it is that वो बच्चा डर के तब आपकी बात मान लेगा, वो अंदर से सीखा नहीं है कि what is the right behavior, what is the wrong behavior. And number 2, for parents, this is especially for parents, please don't think that your child is throwing a tantrum on purpose. वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, they are not trying to upset you. Like I said, they don't know other ways of showing their anxiety, showing their aggression, so it is coming out in the form of tantrums. Now what to do? Firstly, please stay calm. I know difficult हो जाता है, बच्चा सामने रो रहा है, he's hitting, yelling, I know. If you cannot stay calm, pretend to stay calm. See, because what we are trying to teach our children is to be calm. अगर हम ही उस टाइम पे अपना काम lose कर रहे हैं, we are not exactly showing them what they can do. If it helps, please step out of the situation for a moment, take a breath, have a sip of water, and then come back, provided your child is in a very safe space. वो किसी और को hurt करने को या खुद को hurt करने की position में नहीं है. One not very good thing that parents do while a child is throwing a tantrum is उसी time हम reason करने लग जाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं. Understand कि उस time पे वो बच्चा position में है ही नहीं कि वो कोई भी reason या कोई भी logic समझेगा. Not happening. So you have to wait it out. What you can do is just hug your child if he's allowing it. Don't force it. Don't use any words. उस time पे हमने कुछ नहीं समझाना, just hug. तो उससे क्या होगा, the child knows कि my parent is maybe not happy with my behavior. वो disagree करते हैं मेरे opinion से, but they are still there. तो एक वो sense of security child के अंदर build up होती है that you're not going to distance them if you don't agree, if you don't see eye to eye. And
a very strong way to connect with your child during a tantrum is to make your child feel understood. आधा स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाता है जब बच्चे को समझ आ जाए कि पेरेंट मेरी बात समझ गया. तो सपोज यू आर यूजिंग योर टैबलेट, यू यूजिंग योर फोन, जो आजकल हो रहा है, एंड योर चाइल्ड ऑल्सो वांट्स इट कि मम्मा मुझे अभी दो या पापा मुझे अभी दो. उस टाइम पे इवन इफ यू कैन से समथिंग लाइक कि बेटा आई अंडरस्टैंड कि वेट करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, हमें वेट करना नहीं पसंद, एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, हाँ दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस. इट शोज द चाइल्ड कि वन, मम्मा ने या पापा ने मेरे पे ध्यान दिया, एंड नंबर टू, they understand what I'm going through. Okay. Other than that, see, sometimes a tantrum can also be because your child wants your attention. अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो you can start ignoring these tantrums. Why? Because अगर आप उन्हें नेगेटिव अटेंशन भी दे रहे हो, मतलब कि डांट के या फिर बोल के कि प्लीज अभी मेरे को नहीं करना, दैट इज ऑल्सो एन अटेंशन इवन इफ इट इज नेगेटिव. तो वो चाइल्ड को अटेंशन मिल गया, उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है, वो रिपीट करेगा, फिर से आपकी अटेंशन मांगेगा. तो इफ इट इज सोनली फॉर अटेंशन एंड बाय इंट्यूशन पेरेंट्स नो कि बच्चा क्यों कर रहा है ना, तो देन आई वुड से इग्नोर इट. एंड yeah, I think these are some points you can follow, but please be consistent in your approach. ऐसा नहीं कि एक दिन हमने गिव इन कर दिया और अगले दिन हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बेटा आई अंडरस्टैंड. प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच. राइट राइट, आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज इवन एज ग्रोन अप्स ये होता है ना कि जब हम गुस्से में होते हैं, अगर सामने वाला एक्नॉलेज भी कर दे कि हाँ योर एंगर इज वैलिड, और देन यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट एट दैट पॉइंट. मेक्स सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस. इट्स डिफिकल्ट क्योंकि बच्चे can be like, some tantrums can be really wo, but I understand where you're coming from, and this is something which would help. So talking about tantrums, just wanted to know ki when we say tantrums, there are varying degrees, right? Koi tantrums basic normal tantrums ho sakte hain, but sometimes it goes to the level of bahut sara yelling, throwing things, sometimes hitting also. तो ऐसे सिनेरियो में आई अंडरस्टैंड कि एक वंस इन अ वाइल इस तरह के टेंट्रम्स होना इज आल्सो नॉर्मल, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हाइटेंड इमोशंस. लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंसिस्टेंटली उनके टेंट्रम्स आर मोर टुवर्ड्स दिस अग्रेसिव साइड, तो क्या ये इज दिस समथिंग दैट पेरेंट्स शुड बी वरीड अबाउट? इज देयर एन अंडरलाइंग कॉज या इज इट आल्सो नॉर्मल? In such cases, I usually first try to understand from the parents कि घर पे atmosphere कैसा है. If it is all very congenial, अगर अच्छा है, if it is all very good, then we delve deeper into कि और क्या reasons हो सकते हैं. But अगर घर पे sometimes we observe कि as parents we understand violence on screen and violence in reality. तो बच्चे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. अगर घर पे बहुत ज्यादा कोई वायलेंट मूवीज, वायलेंट बहुत अग्रेसिव शोज देखे जा रहे हैं, चिल्ड्रन लुक एट इट एंड देयर कैन बी टू रिस्पॉन्सेज. वन, दे कैन बिकम वेरी फियरफुल. सो यू माइट स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि बच्चा बहुत डर रहा है किसी भी चीज से, कोई भी छोटी सी नई चीज भी ट्राई करनी है, या कोई भी घर पे आ रहा है स्ट्रेंजर, बहुत डर रहा है. नंबर टू, दे आर गेटिंग रियली रियली अग्रेसिव, क्योंकि वो उधर स्क्रीन से देख के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं. हम कुछ बच्चों को दिखाना चाहेंगे, वो शायद नहीं देखते, बट बाकी दुनिया की सारी चीजें बच्चे बहुत इंटेंटली ऑब्जर्व करते हैं. सो आई फील दैट if this is happening, please see the sort of media you are consuming in your house. And number two, अगर घर में कोई conflict है, how is it being solved? अगर within parents या if the elder sibling is also sort of bullying the younger one through physical abuse by hitting, by using bad words, that is what the child is taking in. और जब तक बच्चा अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं कर लेता, वो वही बिहेवियर शो करता है जो उसने एनवायरमेंट से अंदर लिया होता है. And so please be very mindful of what sort of an environment you are presenting to your child. And other very small things that can help is to really model the sort of behavior we want our child to follow. So what I mean is कि अगर हम कभी frustrated हैं, हम कभी गुस्से में हर एक को काम की वजह से, किसी भी चीज की वजह से गुस्सा आता है, and your child is sitting right there, and you've had a small argument with your boss, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है ऑफिस में, if you can just say out loud कि मुझे बहुत frustrated feel हो रहा है, I should just take a break. Child is observing कि मम्मा ने या पापा ने क्या तरीका यूज किया to calm themselves. If you are sometimes angry with your child और कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है, you are just not in the mood to talk. तो कभी-कभी बहुत naturally एक ये response आ जाता है, बेटा यहाँ से चले जाओ वरना एक लगा दूंगी या लगा दूंगा. I understand where that frustration is coming from,
बट उस टाइम पे हमें बहुत माइंडफुल होना पड़ता है दैट यू कैन से कि अभी आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, लेट मी काम माई सेल्फ डाउन एंड देन आई विल कम टू यू. सो यू आर मॉडलिंग फॉर द चाइल्ड कि गुस्से को हम कौन से वेज में, सिर्फ हिटिंग येलिंग या सेल्फ हार्म से हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज एंड देयर आर मल्टीपल वर्ड्स यू कैन यूज सो दैट to calm down and also not hurt the other person. Another thing that really helps children is, अगर suppose उसने आपको मार दिया, hit कर दिया when he is very angry or she is very angry, um, when they have calmed down a day later, maybe बहुत ज़्यादा later on in the week नहीं, maybe a day later you show them that you hit mama और mama को pain हुई. नेक्स्ट टाइम दे रिमेम्बर कि उनके पास्ट अग्रेशन का क्या कॉन्सिक्वेंस रहा किसी पे भी, जिस पे भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा. So yeah, this really helps. Even in this case, यानी उस टाइम पे बोलना might not be the right idea, क्योंकि I have realized जब Athar was going through this phase, जहाँ पे Athar is my son, जहाँ पे he used to resort to probably hitting or something, तो अगर उसी पॉइंट पे उसको बोलो कि नहीं आप मारो मत मुझे, मामा को हर्ट हो रहा है, तो he would probably, एक तो शायद कभी कभी बच्चों को ये होता है कि they immediately don't want to accept कि उन्होंने कुछ गलत किया या जो भी है, because for them it's a way of expressing. तो फिर he continues doing that. So I think what you said makes sense कि दूसरे दिन उसके बारे में बात करना might be a better idea rather than at that point. A lot of parents also ask me, मैम कुछ थोड़ा और immediately बताओ कि हम उसी moment में क्या कर सकते हैं. So I always suggest कि एक calm down kit बना के रख लो with your child. जब बच्चा angry नहीं है, in a very normal day you make a calm down kit and उसमें whatever your child likes doing, painting, drawing, blocks, games, जो भी toys पसंद है, वो छोटे से हमने box में डाल के रख लिए. And when your child says, "Mama, I'm very angry," तो उसको चाहिए कि अगर आप नहीं चाहते मैं hit करूं, then tell me what to do. So you tell them, go and please bring your calm down kit, or you can go and use your calm down kit. What happens is, one, it is an instant mood changer, instantly mood boost हो जाता है, and number two, you are teaching your child to take responsibility कि अपने आप को कैसे calm down करना है. So this is something you can try, and I have seen it work for a lot of families. Actually, a very good idea. Yeah. Please try. Great. So this is about tantrums and all. Other than that, जो एक बहुत common चीज इस age group के बच्चों में होती है, 2 से 4-5 साल के बच्चों में, क्योंकि अभी they've started exploring the world around them. तो most of the times जब हम बात करते हैं या कुछ कहते हैं, तो they are in their own world. सुनते नहीं है बच्चे जल्दी. If you're trying to communicate, a lot of times they don't listen, और sometimes मैंने realize किया वो सुनते भी है बहुत बार, लेकिन as in they are busy in their own thing, तो rather than responding to that, तो उस सिचुएशन, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहने का ट्राई करो विच इज प्रोबेबली एट दैट पॉइंट इम्पोर्टेंट टू यू, तो हाउ डू यू डील विद किड्स जो सुनते नहीं है और या पेरेंट्स को लगता है कि सुन नहीं रहे, तो उस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए? Right, okay, this is another very common concern parents have. तो इसमें the first question I usually ask parents is कि try and think about कि पिछले 3-4 दिन में आपने क्या बात करी अपने बच्चों से, और अगर उसमें आपको ये लगता है कि प्रेज करने से ज्यादा क्रिटिसिज्म है, सो देन नो दैट योर चाइल्ड इज स्टार्टिंग टू ट्यून यू आउट. क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कोई बार बार हमें नेगेटिव बोलता रहे, तुम कभी सुनते नहीं हो, तुम्हें कमरा साफ करने को बोले तुम करते नहीं हो, तो वो ना पेरेंट्स को एक ऐसा फिगर बना लेते हैं कि ये मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, ये मेरे को डांटेंगे. एंड इट इज अ साइंटिफिक रिसर्च, ये अभी मॉम्स की वॉइस पे हुई है, ये अभी डैड्स की वॉइस पे नहीं हुई, बट मॉम्स यूजुअली, चिल्ड्रन हु थिंक कि उनकी मॉम यूजुअली नो बोलती है, वो उनकी वॉइस को ट्यून आउट करना स्टार्ट कर देते हैं. they actually do not register what the parent is saying. So one, if you've really been criticizing your child, it is time to change that. Number two, that happens is you are saying a lot at once. अभी बच्चे छोटे हैं, 3 years, 4 years, 2 years, we all know उनका attention span बहुत छोटा है. तो अगर आप उन्हें बहुत लंबी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बेटा पहले अपना ग्लास किचन में रख के आओ, देन गो टू योर रूम, पुट योर टॉयज इन प्लेस, देन कम बैक फॉर लंच, यू हैव लॉस्ट द चैलेंज, वो नहीं होने वाला है. सो प्लीज जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है उन्हें कीप देम वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी प्रिसाइज. और अगर कोई बड़ा काम कराना है, जैसे यू वांट दैट द चाइल्ड शुड क्लीन देयर रूम, और आपने कहा बेटा जाके अपना रूम सेट कर लो, हमारे लिए ये बहुत ईजी है, बट द चाइल्ड विल गो इन हिज रूम, इन हर रूम, एंड दे विल बी लॉस्ट कि इतना कुछ फैला हुआ है, मैं क्या करूं. देन वी फील कि इसने हमारी बात नहीं सुनी. सो आई ऑलवेज सजेस्ट ब्रेक डाउन योर इंस्ट्रक्शंस इनटू वेरी स्मॉल डूएबल थिंग्स. You tell your child कि बेटा go to your room, collect all your cards, put them in a box, and then you come to me.
Then you tell the next step. Eventually it becomes a game. Mama, one done, what is next? This is done, what is next? Then your child tends to listen more. Then like you said कि बच्चे अपने वर्ल्ड में होते हैं. अगर हम भी कभी खुद को देखें, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट इफ आई एम ऑन माय फोन एंड माय ब्रदर, माय पेरेंट्स, समवन इज ट्राइंग टू टॉक टू मी, मैं 100% अटेंशन नहीं पे करती. तो हम बच्चे को क्या ब्लेम करें? इट इज ऑल्सो हैपनिंग विद अस. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर बच्चा एंग्रॉस्ड है, और स्पेशली स्क्रीन्स में बच्चे ऐसे इंटेंटली एंग्रॉस हो जाते हैं, हाँ, देयर इज नो गोइंग बैक. सो यू कैन नॉट जस्ट शाउट फ्रॉम द किचन कि बेटा ये कर दो और हो जाएगा. डोंट एक्सपेक्ट इट. यू गो टू योर चाइल्ड, you get on their eye level, मतलब उनसे face to face बात करो, see that you have their attention and then give your instruction. अगर हमने दूर से shout किया है, I would say there's barely 10% chance कि वो सुनेंगे और आगे करेंगे. Very very less chance. अगर आपको लग रहा है कि वो busy हैं, तो it is very unfair on a parent's part कि बच्चा बहुत enjoy कर रहा है movie में और हम जाके उन्हें बोल रहे हैं अब भी उठो और ये करो. We also have to respect their time. We also have to respect their space. So ask them, ki beta, when can I talk to you? They'll say, Mama, after my movie is over. Then you go after the movie. This way they are also learning to, this way they are also seeing ki Mama listen to me. Now I'll also listen to Mama when she tells me ki movie के बाद क्या करना है. या और अगर लगता है कि despite all of this भी कुछ नहीं हो रहा है, try offering your children choices. उन्हें choice दो. क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे हमें आंसर देना है, तो वो सुनेंगे. यहाँ पे उन्हें लगता है कि हमें कोई कंट्रोल दे रहा है कि डू यू वांट टू हैव पास्ता फॉर डिनर, या फिर मैं ये सूप बना दूं, या फिर मैं चपाती बना दूं. उन्हें लगता है अच्छा चॉइस मिली है तो हमें कंट्रोल मिल रहा है. दैट इज व्हेन दे विल रिस्पॉन्ड. इनफैक्ट सम ऑफ दिस आर सो रिलेटेबल, स्पेशली जो आपने रूम क्लीन अप वाला बताया, बिकॉज आई ऑलवेज प्ले दिस गेम विद माय किड. देयर इज लाइक अ गेम कॉल्ड साइमन सेज, वेयर साइमन सेज समथिंग एंड देन राइट. तो जब भी मैं उसको वैसे नॉर्मली मेस क्लीन करने को कहते हो, ही इज ऑब्वियसली नेवर इंटरेस्टेड, बट व्हेनेवर आई से कि चलो वी आर गोइंग टू प्ले साइमन सेज, और सेम वी ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल के. फर्स्ट ऑफ ऑल गो पिक अप ऑल योर लीगो ब्लॉक्स, देन ही विल पिक अप ऑल हिज लीगो ब्लॉक्स. तो इट्स fun for him also. फिर भाग भाग के अच्छे से करता है. So very relatable. I think the other tips also I should definitely try. They should work. So thank you so much for that. And since you mentioned कि हम लोग इतनी बार negative response देते हैं बच्चों को या instructions देते हैं, there is a school of thought right now जो एकदम completely opposite है, where they say be a yes mom, यानी don't say no too frequently, right? अब बहुत ज्यादा तो I don't know how feasible it is to constantly over a period of 2-3 years constantly get into that habit. लेकिन what's your view on that? यानी no कहना कितना, as in कितना कम रखना चाहिए, restrict करना चाहिए, या is there a way in which gently no कह सकते हैं बच्चों को? How do we go about that? See, firstly I understand बहुत सारी चीजें रिसर्च हो रही हैं पेरेंटिंग पे, एंड अ लॉट ऑफ स्टडीज आर कमिंग आउट. नंबर 1, follow your instinct. We cannot always go by what is on the website or what is on social media. Please don't pressurize yourself. This is my message to all the parents. Abhi in the given times, we are anyway, everyone is struggling a lot. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो अपने ऊपर. बट yes, see, so it has been seen कि जैसे I said कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा no सुन रहा है, so they start ignoring you. They start tuning you out. So my only advice to parents is say no when it is really necessary. When you see ki the child is hitting, the child is using a bad word, the child is harming himself, या emergency situation है, वो बड़े अभी हमने गरम कंटेनर गैस से उतार के नीचे रखा और वो उसको टच करने जा रहे हैं, you have to say no. तब तो हम yes कह ही नहीं सकते. तो जहाँ पे no avoid नहीं हो सकता वहाँ please say no. But otherwise one thing I say is, if you can already establish very clear boundaries with your child, अगर स्टार्टिंग से ही हम क्लियर कर देते हैं घर में व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो जो आपकी नीड है टू से नो, इट रिड्यूसेस, इट गोज डाउन. एंड एज फार एज वी टॉक अबाउट जेंटल वे टू से नो, आप नो की जगह ना उसको कुछ पॉजिटिव दो करने को. बिकॉज व्हेन आई से नो डोंट जंप ऑन द सोफा, तो बच्चे ने ये तो सुन लिया कि मुझे सोफे से उतरने को कह दिया गया है, बट व्हाट डू आई डू, है ना, वो प्रोसेसिंग उसको अपने आप करने पड़ जाती है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो डोंट जंप ऑन द सोफा, यू कैन से बेटा व्हाई डोंट वी वो जंप ऑन द फ्लोर. अगर वी आर टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम द चाइल्ड, you give something, you give a positive replacement.
so that the child understands कि एक चीज मेरे से ली गई है, मुझे दूसरी चीज करने को दी गई है. Number 2, saying no in a very firm way, मतलब serious होके, and saying no in a rude way. Both of them are very different. So be firm but don't be rude, क्योंकि हम ये नहीं दिखाना चाह रहे कि हम बड़े हैं, हम अथॉरिटेटिव हैं, तो हम आपको नो करेंगे और हम आपको कंट्रोल करेंगे. You are inviting a battle. Am I audible? You are audible. थोड़ा सा lag था, but now it's fine. All right, okay. So what I was saying is कि हमें ये नहीं दिखाना कि हम ही अथॉरिटी फिगर हैं, क्योंकि अब चाइल्ड इज एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, ही इज लर्निंग टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन और शी इज लर्निंग टू डू थिंग्स ऑन हर ओन. तो हमें ये करना है कि हम बहुत आराम से, जैसे अगर बच्चे ने नाइफ उठा ली सपोज, वी गेट इंस्टेंटली बहुत डर लग जाता है कि क्या करें. उस टाइम पे हम बहुत यूजुअली हम शाउट कर देते हैं, नो बेटा कीप इट बैक. उस टाइम पे बच्चे का हम अग्रेशन बढ़ा रहे हैं, यू नो हाउ डेयर शी टेल मी व्हाट टू डू, क्योंकि नाउ दे आर इन दैट स्टेज. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज गो टू योर चाइल्ड, एक सेकंड में यू कैन रीच योर चाइल्ड, यू नो होल्ड द नाइफ विद हिम एंड सी कि यू नो दिस लुक्स क्वाइट शार्प ना बेटा, it might cut you, let's put this away, here you can have a spoon if you want something. So there is a very firm way of saying no, but अगर हम rude हो रहे हैं, it is going to backfire. So there's some amount of work जो हमारे end से भी, I think, because being patient and in that moment kind of reacting like that is also a big deal. तो अगर हम बच्चों से expect कर रहे हैं तो हमें भी शायद वो work डालना पड़ेगा. That's right. So what I've also seen is कि क्योंकि लास्ट जनरेशन, हमारी जनरेशन, वी हैव गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल, अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूँ तो, राइट, जहाँ पे ऑथोरिटेटिव, लाइक यू सेड, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैड दैट, एक यू नो बड़े हैं तो ऐसे उनके सामने बिहेव करना है, उनकी बात माननी है. सो अ लॉट ऑफ अस नाउ हैव गॉन टू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जहाँ हम लोग एकदम ही वी ट्राई टू पेरेंट थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. और कभी कभी इट बिकम्स द अदर एक्सट्रीम, जहाँ पे हम वी आर कॉन्स्टेंटली प्रेजिंग आवर किड्स के, अरे यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, या यू आर सच अ गुड बॉय, कुछ भी छोटी छोटी चीजों के लिए. अब हाउ ओके इज दिस एक्सट्रीम, या कैसे वो मॉडरेशन मेंटेन करा जाए इन अ सिनेरियो लाइक दैट? Okay. So one, I will say that like you said कि हम भी अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, and that is somehow we choose to continue that tradition or we choose to reject that tradition and make a new one. तो पहले ये होता था, like you said, डांट ज्यादा पड़ती थी, हमारी चीजों को अप्रिशिएट कम किया जाता था, प्रेज कम किया जाता था. Now you are right, we are reaching the other end of the spectrum, वहाँ पे there is a lot of praise. And a very valid question, because sometimes parents feel कि हम spoil तो नहीं कर रहे बहुत ज्यादा praise करके, या you know, if there is a thing called over praising also. So देखो, इस पे बहुत सारे अलग अलग opinions मिलेंगे. In my opinion, no, you can never over praise your child. Do it, but I want to just point out some things जहाँ पे हम एक थोड़े से you know गलत तरीके से praise कर रहे हो सकते हैं. Like you said, we say amazing job, कभी हम कह देते हैं good job. तो अब हमें इतनी आदत पड़ गई है ये टर्म्स यूज करने की, यू नो, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, ये भी किया तो गुड जॉब, कि यू नो द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड कि मम्मा या पापा अपना काम खत्म कर रहे हैं, दे आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी हैव डन, दे आर कैचिंग इट. तो बड़ा इनसिंसियर सा साउंड करता है, इट विल नॉट रियली मोटिवेट योर चाइल्ड. एंड यू नो, इफ यू थिंक अबाउट इट, व्हेन वी आर सेइंग गुड जॉब, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि बच्चे ने एग्जैक्टली गुड किया क्या है. सो आई फाइंड इट टू बी अ वेरी वेग सॉर्ट ऑफ अ प्रेज. So, you know, please be mindful. There is a term that is coming up. It is called labeled praise. You label what the child has done well. So suppose the child brings a painting to you or a drawing to you. You tell the child, I really like कि आपने जो colors choose करे हैं, those are really making this whole painting so beautiful. Or you know, another thing parents do is, wow, you won the game. Give me a high five. Or you know, you completed your painting in this much time. हम कर रहे हैं. So you know, the child always feels कि मुझे उसी expectation पे live up करना है, coming second, or you know, making a very average drawing is not going to please my parent. So please also learn to praise the process instead of only the outcome. And one very genuine and I feel the most beautiful way of praising your child is to understand कि उन्हें अपने इस पूरी अचीवमेंट में सबसे अच्छा क्या लगा. If you question, it means you are genuinely interested. आप ध्यान दे रहे हो कि उन्होंने किया क्या है.
To give you a few examples, you can say, suppose the child completed a puzzle. एक तो तरीका हो सकता है, very good, you completed the puzzle. Another thing is, you can ask, how did you do it? What strategy did you use? Tell me more about it. You will actually come to learn about the child's thinking process. And the fact that a parent is taking so much interest, parent चाहता है जानना कि बच्चे ने क्या किया, is the biggest compliment for a child, right? And overpraising में, I want to just say one thing, कि please don't overdo your praise. कभी कभी parents I have observed say you are the best child in the world, or you're the smartest child in the world. Children know it is not genuine. They have seen you also call other children, औरों को भी हमने cute बोला होता है, बेटा तुम इतने अच्छे, औरों को भी बोला होता है. तो इस वे में overdo नहीं करना and compare भी नहीं करना. Don't say you are so much better than your sibling, या तुम्हारे भाई ने इतना अच्छा सैंडविच नहीं बनाया, तुमने बहुत अच्छा बनाया. फालतू में हम कंपटीशन को बीच में ला रहे हैं. जस्ट कीप योर प्रेज वेरी जेन्युइन, जिससे यू डिड इट. आस्क देम हाउ डिड यू फील ऑन विनिंग. That way they know, and that is more than enough for them to know. Another thing related to this only, यानी अटेंशन, प्रेज, ये सबसे रिलेटेड एक और चीज खास करके 2-3 साल के बच्चे में इस आई should I call it attachment, over attachment, कहो clinginess भी, we term it sometimes as clinginess, right? तो इस एज ग्रुप के बच्चे, I understand कि there are phases that they go through where they will be clinging, right? क्योंकि they're going through something or the other. But in general, अगर बच्चा is probably a little more clingy, or clingy sounds very negative, but in general, constantly wants to be around one person or one or two people only. और तो क्या, again, is it normal? Could there be reasons around it? And as parents also, over a period of time, thoda sa we expect as kids are growing, they'll also grow a little more independent, and we'll also be able to do a little bit of our things also in a very practical scenario. तो क्या कुछ specific reasons हो सकते हैं अगर ऐसा कोई केस है, जो काफी होते हैं, काफी cases ऐसे होते हैं where kids are very clingy. So yeah. So, see, firstly, to address the term clingy, I know that when we say it, it sounds bad. It is okay to use in a professional way, but one thing I want to say is that make sure कि parents बच्चों के सामने बस ये word नहीं use कर रहे. I get it where parents are coming from. They also want to have their own me time. So I get it. And reasons, see, there could be many reasons. One, like you said, कि developmental है. तो आजकल सबने सुना ही होता है separation anxiety. 10 months से जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता, इस स्टेज में बहुत कॉमन है कि बच्चे को एंजाइटी होगी, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा व्हेन देयर पेरेंट, मदर, फादर और एनीवन दे आर क्लोज टू, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनसे बच्चे को दूर रहना पड़ रहा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता. एंड दैट इज व्हेन दे सीक योर अटेंशन. तब वो चाहेंगे कि आप हमेशा उनके पास रहो. नाउ देयर आर वेरियस अदर रीजंस. अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में एकदम से आपका बच्चा चाह रहा है कि हमेशा वो आपके पास रहे, सो सी, हमें ही अभी इतनी एंजाइटी है, तो बच्चों को तो इससे, बिकॉज दे डोंट इवन अंडरस्टैंड ढंग से कि हो क्या रहा है. लाइफ नॉर्मल थी, एकदम से हमें मास्क पहना दिया. हम स्कूल जाते थे, एकदम से हमें घर पे बिठा दिया. तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंज है, अ वेरी बिग चेंज. तो अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, द फैक्ट कि वो आपके पास आ रहे हैं, दे आर वांटिंग टू बी विद यू, इट शोज कि दे हैव अ वेरी वेरी सिक्योर अटैचमेंट विद यू. So firstly, I want to congratulate parents. अगर आपका child आपको एक safety figure समझ रहा है, you have done a beautiful job of bringing up your child. And secondly, बच्चे ना छोटी छोटी चीजों पे भी पिकअप करते हैं घर में. So you might see, अगर पेरेंट्स के बीच में आर्गुमेंट हुई है, they might cling to you, they might want one of the parent more, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि ये घर में शोर क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है. या अगर घर में देयर हैज बीन अ नेगेटिव इवेंट, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट हुआ है, देयर हैज बीन अ डेथ इन द फैमिली, या स्पेशली देयर हैज बीन एन एडिशन, छोटा बेबी हुआ है, सिबलिंग हुआ है, तब भी योर लिटिल वन विल वांट अटेंशन, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि अभी अटेंशन किसी और को दी जाए. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस. आपने लोकेलिटी चेंज की है, घर चेंज किया है, तो बहुत चीजों की वजह से जहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, दे रन टू देयर सेफ्टी फिगर विच आर पेरेंट्स. So that is why it is happening. अभी के टाइम में I will strongly recommend कि आप इग्नोर मत करो उनकी ये नीड. Don't try and push them away.
I understand you want your own time, I'll come to that. But you know, अगर बच्चा आपसे comfort seek कर रहा है, उसको चाहिए कि मैं मम्मा के पास जाऊंगा, मैं पापा के पास जाऊंगा, मुझे अच्छा सिक्योर फील होगा, and you are pushing them away, it means कि ये क्लिंगी फेस आप अपने लिए खुद के लिए स्ट्रेच कर रहे हो, क्योंकि उन्हें वो कंफर्ट नहीं मिला जो चाहिए. सो व्हेन यू आर हगिंग योर चाइल्ड, व्हेन दे आर कमिंग टू यू, किसी भी मोमेंट में, कभी नाइटमेयर्स के बाद भी दे रन टू यू, दे वांट टू बी विद यू, टेल देम, यू नो, कि बेटा आई सी, आई अंडरस्टैंड कि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी है, एंड यू डू नॉट वांट टू बी फार फ्रॉम मी, है ना. और यू नो जस्ट हग देम एंड टेल देम दैट मैं यही हूँ, आई एम हियर फॉर यू. अगेन एक्नॉलेज कि उनके मन में ये एक डर चल रहा है, and they will see कि okay, mama and papa have understood what is happening. Now there are very everyday things also you can do to ensure कि बच्चा थोड़ा सा और independent हो. Number one is आपको जो भी घर में लगता है कि उनके एज अप्रोप्रिएट काम है ना, जैसे हम किचन में कुछ कर रहे हैं, सो यू टेल देम कि बेटा कैन यू जस्ट टेक दीज प्लेट्स और इनको जाकर टेबल पे लगा दो, सब इकट्ठे डिनर कर लेंगे. When they do it, tell them, you know, you have done well, you helped me, you know did this on your own. उन्हें समझ आता है अच्छा मुझे काम दिया गया और मैंने कर दिया. इंडिपेंडेंस फॉस्टर होती है. नंबर 2, कभी कभी ऐसा होता है, यू नो, यू आर टेलिंग 3-year-old कि बेटा मैं जा रही हूँ एंड आई विल कम बैक इन 20 minutes. बच्चों को सेंस ऑफ टाइम नहीं होता, दे कैन नॉट इवन रीड टाइम. आप उन्हें बोलोगे मैं 4 बजे आ रही हूँ, मैं 5 बजे आ रही हूँ, दे विल नॉट अंडरस्टैंड. तो प्लीज बच्चों की वोकैबुलरी यूज करो. टेल देम बेटा यू हैव योर लंच, उसके बाद हैव योर नैप एंड देन आई विल बी बैक. तो उन्हें पता है कि लंच शांति से करना है, मेरे को नैप लेना है, उठूंगा, पापा विल बी बैक, मम्मा विल बी बैक. एंड कुछ केसेस में जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत ही ज्यादा लाइक यू आर नॉट गेटिंग योर ओन टाइम, उसमें व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको 10 minutes भी नहीं मिल पा रहे, या यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर सेपरेशन एंजाइटी, पुट अ टाइमर फोन में. दिस इज यू नो अ वेरी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेजेस पे जब हम सेपरेशन प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, यू पुट अ टाइमर, बच्चे के साथ लगाओ, उन्हें कहो जब इसमें सॉन्ग बजेगा, व्हेन द टाइम इज ओवर मम्मा विल बी बैक. प्लीज हाफ एन आवर का टाइमर लगा के छोड़ के मत चले जाना, बच्चा बहुत डर जाता है. स्टार्ट विथ 10 minutes, then go to 15 minutes, then 20 minutes. ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड करो, तब द चाइल्ड नोज, उसको एक सिक्योरिटी मिलती है, मम्मा बोल के गई, टाइमर बजा, मम्मा इज बैक, एंड प्लीज बी बैक व्हेन द टाइमर रिंग्स, वरना योर मतलब एक्सेप्टेंस अपॉर्चुनिटी भी गई फिर तो. एंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a lot of parents have also been asking कि अब जब बच्चे को वापस स्कूल जाना है लॉकडाउन के बाद, तब भी they are afraid कि कैसे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको खुद में एंजाइटी है कि मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, योर चाइल्ड विल कैच ऑन दैट, वो और डरेगा. वेन यू गो टू ड्रॉप देम एट द स्कूल, चाहे अंदर से आपको जितना भी डर लग रहा है, प्लीज यू नो कीप अ वेरी न्यूट्रल फेस, बी वेरी कॉन्फिडेंट, ताकि बच्चे में भी वो कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट हो कि हाँ ये मुझे बहुत सेफ एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं, एंड दे विल बी हियर टू पिक मी अप व्हेन आई कम आउट. So you yourself, please don't be anxious. Especially I think for us as parents, यानी इस who's going through this COVID वाला पूरा जो last 1.5-2 साल का phase है, क्योंकि most of the kids, like I said, 2-3 साल के हैं, यानी उन्होंने अपने आधे से ज्यादा life they've seen just being inside the house, right? Hardly कोई social interactions हो रहे हैं. जब से इनफैक्ट 1.5-2 साल बाद तो बच्चे यूजुअली थोड़ा सा सोशली इंटरेक्टिव होना शुरू होते हैं, उसके बाद they've constantly seen this phase only. तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी अभी चिंता है कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड या ना के बराबर है. ज्यादा ऑनलाइन स्कूलिंग अगर थोड़ा बहुत करते हैं, जिसमें भी बच्चे ऑब्वियसली आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ गेट इनटू दैट रिचुअल. तो इन अ नॉर्मल सिनेरियो आल्सो, और स्पेसिफिकली इस सिनेरियो में बच्चों को सोशल थोड़ा सा ज्यादा आगे जाके, एज इन सो दैट दे डोंट हैव टू मच ऑफ एंजाइटी. आई नो हमारे पास थोड़ा एक तो नॉर्मल सिचुएशन में भी वी हैव दिस I don't know should I call it craze or not कि बच्चे सोशल होने चाहिए, जबकि इट्स अ पर्सनालिटी टाइप, आई अंडरस्टैंड. बट क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी पिक्यूलर है जहाँ पे बच्चों को वो चांस ही नहीं मिला where they open up to the outside world. तो what are the few things which we can do अभी as baby steps, और फिर जैसे चीजें नॉर्मलाइज हो तब in general, जिससे you know बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिले. See, I just tell parents कि number one, have acceptance. Please accept करो what is happening is not normal.
और किसी ने भी कभी भी इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ये इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा वेयर वी कैन नॉट मीट अदर ह्यूमन बीइंग। तो देयर विल बी सम थिंग्स, देयर विल बी सम स्किल्स जो बच्चों में हैम्पर होंगी, बट आप जब तक ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे और जब तक इस चीज को लेके यू विल बी एंशियस, तो बच्चा भी सोचेगा ऐसा मैंने क्या मिस आउट कर दिया। यू माइट ऑल्सो बी इन दैट वे मेकिंग देम फील वेरी एंशियस अबाउट सोशल इंटरेक्शन। तो प्लीज बी काम अबाउट इट, नो दैट कि इसका नाम है सोशल इंटरेक्शन। तो विदाउट अ सोशल सेटिंग इट कैन नॉट हैपन, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड, एंड इफ यू वांट कि घर पे करना है तो सी ट्राई टू कीप थिंग्स अ लिटिल नॉर्मल फॉर द चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा अगर हम कोविड है ये नहीं करना वो नहीं करना करेंगे तो वो एनीवे वैसे ही बाहर जाने से बहुत डरेंगे। घर में हाउ यू कैन मेंटेन नॉर्मलसी इज प्ले गेम्स विद देम। हम अपने बचपन में खेलते थे, आई डोंट नो हाउ मच पेरेंट्स आर डूइंग इट विद देयर किड्स दीस डेज, बट आई रिमेंबर आई यूज्ड टू प्ले दिस शॉप थिंग विद माय कजिन्स, जहाँ पे वी वुड स्प्रेड आउट अ फ्यू आइटम्स, हम नकली नोट बनाते थे, नकली पैसे बनाते थे। दैट इज अ वेरी गुड वे टू टीच सोशल इंटरेक्शन। You give them small chits, you play with them, you line up your books and you tell them कि अच्छा these are 10 books in my shop, आपको मेरे से क्या चाहिए? You pretend to be the shopkeeper, then the child pretends to be the shopkeeper. So pretend play is a very upcoming and a brilliant way of teaching your child social interaction. Then second is अगर आपके घर के बाहर फ्रूट वेंडर्स आ रहे हैं या वेजिटेबल वेंडर्स आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं जिनसे आप ले रहे हो, ट्राई करो ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक विद अ प्रॉपर मास्क। हैव योर चाइल्ड टॉक टू देम कि एप्पल दे दो, मैंगो दे दो, and they'll obviously respond. If you see these people who come and sell vegetables, fruits, वो बच्चों से हमेशा बातें करते हैं, they'll never say no. So have that as a social interaction. अगर आसपास कोई, if you can step out in your balcony और आसपास छोटे बच्चे रहते हैं, just a simple hi, hello, how are you is also a very good beginning. ऑनलाइन तो क्लासेस अभी तो समर वेकेशंस हैं, बट व्हेन क्लासेस स्टार्ट ट्राई दैट जब आपके बच्चे का चांस आए ही आंसर्स और शी आंसर्स, क्योंकि हम अभी रियलाइज नहीं कर रहे, बट इवन ऑनलाइन क्लासेस में भी योर चाइल्ड इज ऑटोमेटिकली लर्निंग सोशल स्किल्स. They are waiting for their turn. They are learning to listen to other people. They are understanding कि अथॉरिटी फिगर एक टीचर है जो ये पूरी चीज को डायरेक्ट कर रही है, रेगुलेट कर रही है. तो क्योंकि हमारे लिए द नॉर्मल हैज ऑलवेज बीन बच्चा स्कूल जाएगा और सीखेगा. आई एम नॉट सेइंग कि ये वर्चुअल वर्ल्ड उसे रिप्लेस कर सकता है, बट इसके भी बेनिफिट्स हैं जिससे बच्चे खुद सीख रहे हैं. You as parents need to communicate with them every day. If their grandparents live far away, कहीं और रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, वीडियो कॉल पे बात कराओ उनसे, नाना नानी से या दादा दादी से पहले ही कोऑर्डिनेट करके रख लो कि आस्क माय चाइल्ड दिस. तो बच्चा नए नए क्वेश्चंस और आंसर्स भी सीखेगा. बट लाइक आई सेड, बेस्ट सोशल इंटरेक्शन तभी होगी once this is over, we step out. Please don't be anxious. Your child will learn it. It is like a muscle. वो social interaction is like a muscle. हम बाहर जाके उसको practice करते हैं, वो strengthen हो जाएगा. So please don't worry. Because what you're saying makes sense. My kid in general, क्योंकि he had spent some time before COVID also school जाता था ये सब, तो in general he is quite social. कोई आता है तो भी बात काफी करता है. लेकिन I realized कि जैसे ही online schooling शुरू हुई, probably because it's a new interface also for them, कि कोई कुछ पूछेगा, हाय, लाइक नॉर्मल थिंग्स लाइक हाय, हाउ आर यू, देन ही विल टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड, और बाय द टाइम वो दे जंप ऑन टू अनदर पर्सन, राइट. तो शुरू में आई ट्राई टू बी अ लिटिल पुशी अबाउट इट कि अरे मैम पूछ रही है, रिस्पॉन्ड, अगर मैम पूछ रही है हाउ आर यू, एंड देन आई रियलाइज कि ही यूज्ड टू काइंड ऑफ टेक अ स्टेप बैक अगर मैं उसको स्पेसिफिकली ये कहती थी कि करो. सो बिकॉज इट डिड कम नेचुरली टू हिम नाउ कि अब 6 महीने हो गए तो ही नोज के सामने से अगर टीचर पूछ रही है तो शी इज प्रोबेबली टॉकिंग टू हिम. तो like you said, acceptance and then probably going with the flow and waiting it out, I think is important. जो थोड़ा हो जाता है कि अब एक एज हो जाती है ना बच्चों की, तो पेरेंट्स गेट अ लिटिल एंशियस कि अरे बात क्यों नहीं कर रहा है. गलत नहीं है, everyone wants कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट वे में डेवलप हो, but we cannot forget the circumstances. हमें सेफ्टी अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than the skill. Yeah, so that was about the social skills and all. I think काफी हम लोगों ने cover कर लिया. एक दो specific questions जो again social skills से related आए थे. And I know because ये I have also personally, like मेरी mom बात करती है कि ये मेरे भाई के साथ भी होता था, where a kid is एक particular gender के साथ ज्यादा comfortable, ठीक है,
एंड कोई और यानी जैसे लाइक प्रोबेबली मे बी देयर आर मोर फीमेल मेंबर्स इन द हाउस, ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं जो भी है, कि मेल मेंबर्स के साथ वो इंटरेक्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है. तो अगेन लाइक व्हाट कुड बी द रीजन, हाउ डू वी गेट देम अ लिटिल मोर कंफर्टेबल इन अ सिनेरियो लाइक दिस? नंबर वन, अगर कोई एक पर्टिकुलर मेल फिगर है जिससे हमें लग रहा है कि बच्चा डर रहा है, looking at them and running away and being afraid is not a very normal response. उनसे बात ना करना ठीक है, लेकिन इतना डर के भागना, तो वहां हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ऑन अ पर्सनल लेवल कि क्या चल रहा है. बट अदरवाइज इफ द प्रॉब्लम इज कि वैसे ही मेल जेंडर से प्रॉब्लम है, वन, सी, toddlers tend to look at the faces when you're talking. You will always see them staring into your eyes, touching your nose, वो बहुत ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस पे भी जाते हैं बात करते हुए. तो आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अराउंड मी, इफ अ मैन हैज वेरी लॉन्ग बियर्ड या काफी हाईलाइटेड मस्टैच है, तो द चाइल्ड टेंड्स टू बी अ लिटिल अफ्रेड, क्योंकि उसको ना बहुत मैटरनल से फेस की आदत पड़ गई होती है, wherein clean and he's touching and it's so soft, and if he touches a man's face तो ऐसे थोड़ा रफ है. This is one. Number two is, अगर आप स्पेसिफिकली चाह रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर मेल मेंबर है और उनसे थोड़ा सा बच्चा फेमिलियराइज हो जाए, हैव दैट पर्सन टॉक अबाउट द चाइल्ड्स फेवरेट थिंग्स, और हैव दैट पर्सन डू द चाइल्ड्स फेवरेट एक्टिविटी. पुश मत करो चाइल्ड को, बट जैसे अगर आप मानो बच्चे को क्ले से खेलना पसंद है, लीव दैट मैन विद सम क्ले, और वो खेल रहा है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, थर्ड टाइम में, इफ नो वन एल्स इज डूइंग इट, द चाइल्ड विल बी अट्रैक्टेड टू गो एंड प्ले, क्योंकि उसकी फेवरेट एक्टिविटी चल रही है. तो अगर हम पुश करेंगे किसी से बात करने के लिए, सो इट विल बी आप इन अ वे बैकफायर ही करोगे. तो इट विल बी लाइक, इतना क्या हो गया, इसी बंदे पे क्यों इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है. ट्राई टू कीप इट नेचुरल. उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, कोई कार्टून है, उस बारे में भी अगर उसको लेके भी इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, तब भी इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द चाइल्ड विल soften up and they'll start talking to that member. Yeah. ठीक है. उसके अलावा जनरली लाइक वी स्पोक अबाउट के सोशल बनाने के लिए और ये और वो, बट कुछ कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है जो पेरेंट्स वांट के एज किड्स, सम थिंग्स लाइक के eagerness to try new things, eagerness के at least resistance to try new things ना हो, जो कि बहुत सारे बच्चों में होती है, because they it's a new thing for them, right? They have never come across, उनको पता नहीं कि क्या consequences होता है. बहुत सारे बच्चे, जैसे अथर्व के साथ भी होता है कि in general he is a good eater, for example, but if there is something exceptionally different जो हम उसको ऑफर करते हैं, तो he will not try, यानी चाहे कुछ कर लो. अब ये मैं खाने की बात करी, but in general बहुत सारी चीजें हो सकती है, in terms of activities हो सकता है, पूल में जाना हो सकता है, कहीं स्विंग पे जाना, तो बहुत सारे बच्चे बहुत कीन होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं. सो अगेन आई पर्सनली फील के कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रीवियसली हमने उस सिचुएशन को ऐसे तरीके से टैकल किया हो जो बच्चे को शायद अच्छा ना लगा हो, एंड देन इज become very stubborn about it. Yeah, like what is the scenario and what is the right way to go about introducing new things? So see, हमें पहले ये समझना है कि जब भी हम कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, स्पेशली इफ इट इज एन एक्टिविटी, तो फियर या फिर डिनायल, रिजेक्शन, ये सब बहुत कॉमन और बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो एक बच्चा देगा. क्यों? क्योंकि वैसे तो उन्होंने काफी चीज पे अपनी मास्टरी कर ली है, लेकिन कुछ भी अगर न्यू आता है, इट मेक्स देम फील अगेन वेरी पावरलेस, एंशियस फील होता है, बहुत वल्नरेबल फील होता है कि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो इसलिए फियर इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. नंबर टू, just see and just try to reflect कि have you done anything which lowers your child's self-esteem? ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि पास्ट में उसने like you said कुछ ट्राई किया हो और हमारा रिस्पॉन्स शायद इतना encouraging नहीं रहा हो. अगर हम ऐसा भी कह देते हैं ना, if a child is failing and we just end the topic by saying अच्छा okay you failed, वो बात बच्चे के दिमाग में बैठ गई. Instead if we are saying it's wonderful you tried, next time also we'll try, तो उसको पता है मेकिंग मिस्टेक्स इज ओके. एक बार अगर मेरे से नहीं हुआ, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, तो वो डरेगा नहीं. सेकेंडली, लाइक यू आस्क्ड अबाउट द पूल थिंग, बहुत बच्चों को डर लगता है टू स्टेप इनटू द पूल, एंड आई हैव आल्सो सीन पेरेंट्स डू दिस कि सीधा उनको वो ट्यूब पहनाएंगे और पूल में डाल देंगे. दे आर नॉट रेडी. तो टेक वेरी वेरी स्मॉल बेबी स्टेप्स. इसको हम ग्रेडेड एक्सपोजर कहते हैं कि पहले जैसे अगर आप बच्चे को पूल के साथ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, in a very gentle way have the child just
पुट हिज फिंगर्स इन अ बाथटब या बकेट या टोज, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा एरिया ऑफ वाटर है. एंड देन यू टॉक टू देम अबाउट इट. आप उन्हें एडवांस में प्रिपेयर करो कि बेटा इट इज ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट, बट अब हम एक बिग जगह पे बिग पूल में हम ट्राई करेंगे. और पूल में भी जाते ही डाल नहीं देना. अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कम फ्रॉम द थॉट दैट डालेंगे और सीख जाएगा. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू आर टेरिफाइंग द चाइल्ड फॉर लाइफ. तो उसको धीरे धीरे करके, जब आपको लगता है वो अपने टोज और फिंगर्स डिप करना सीख गया, हैव हिम सिट बाय द साइड ऑफ द पूल जैसे हम करते हैं, और बस लेग्स पूल में डालो. धीरे धीरे करके कोई भी एक्टिविटी है उसमें धीरे धीरे करके एक्सपोजर बढ़ाओ. अगर पेंट से प्रॉब्लम है, बच्चे को टेक्सचर नहीं अच्छा लग रहा, वो ट्राई नहीं कर रहा पेंटिंग वगैरह, जस्ट हैव हिम टच अ पेंट फॉर अ लिटिल वाइल. 4 मिनट 5 मिनट फिंगर पे रखो, आस्क हिम कैसा लग रहा है एंड देन रिमूव इट. सीधा हम उसे कहेंगे आप फिंगर पेंटिंग करो, ये करो, वो नहीं करेगा अगर उसको टेक्सचर नहीं अच्छा लग रहा. देन अनदर वे इज व्हेन दे सी अदर चिल्ड्रन डूइंग इट, एक दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखो. अभी हम बाहर नहीं जा सकते तो यूट्यूब पे उस एक्टिविटी का वीडियो ढूंढो जहाँ पे बच्चे कर रहे हो और वो दिखाओ. टॉक टू हिम कि अरे ये कितना एंजॉय करता हुआ लग रहा है ना, आपको ट्राई करना है. इफ द आंसर इज यस, ट्राई इट. इफ द आंसर इज नो, प्लीज डोंट फोर्स देम. कभी कभी ये भी हो सकता है दैट यू हैव टू डू द एक्टिविटी एंड द चाइल्ड ऑब्जर्व्स. आजकल ज्यादा यही करना पड़ेगा क्योंकि बाहर जा नहीं सकते. अनदर थिंग इज, हम कभी कभी इतना ज्यादा फोर्सफुल हो जाते हैं, पुश करते हैं, वाई यू नॉट डूइंग इट, वाई यू नॉट डूइंग इट, कि हम पूछना भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. सो प्लीज आस्क देम कि व्हाट डू यू थिंक कि इस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा फियरफुल क्या लग रहा है, या सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होगा, या फिर आप इसको कैसे करना चाहोगे. सपोज द चाइल्ड सेज मैं पूल में जाना चाहता हूँ बट आई हैव अ फियर कि मैं डूब जाऊंगा, विच इज अ वेरी लेजिटिमेट फियर. इतनी बड़े वाटर स्पेस में आप उसको डाल रहे हो. देन टेल देम, अच्छा ओके, ये ट्यूब क्या होती है, हाउ वी यूज इट. टॉक टू देम अबाउट द फ्लोटी. जब उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि देयर इज समथिंग टू सेव मी, तो वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. बट प्लीज टॉक टू देम कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. सिंस यू मेंशन स्पेसिफिकली फिंगर पेंट और इस सब की भी हमने बात की, तो उससे मुझे याद आता है कि सो टेक्सचर रिलेटेड इश्यूज इट्स नॉर्मल राइट, क्योंकि ये मैंने इससे पहले भी डिड अ सेशन ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड आई रिमेम्बर हैविंग स्पोकन टू हर आल्सो, जिसमें कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ टाइप का टेक्सचर खाने में भी वो रेजिस्ट करते, राइट. देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट, इज इट कि जैसे अधर का भी ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर टेक्सचर होगा, या तो ही माइट बी ओके विथ ईटिंग बट नॉट बाय हिमसेल्फ क्योंकि ही इज जस्ट नॉट यूज्ड टू दैट स्टिकी वो, या ही कंप्लीटली रेजिस्ट कोई कुछ कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर की चीजें, वेट टेक्सचर हो, चाहे कुछ स्टिकी स्लाइमी चीजें हो. तो इज देयर अंडरलाइंग रीजन वहां पे? ये भी हो सकता है कि अभी एज अ चाइल्ड ही इज रेजिस्टिंग इट. एज ही गोज ऑन आवर टेस्ट बड्स आल्सो डेवलप. तो ये जरूरी नहीं है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, बट इफ लिक्विड से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है दैट समटाइम्स सम चिल्ड्रन डोंट लाइक लिक्विड एनीवेयर अराउंड देयर बॉडी. उन्हें नहलाना, शावर लेना, या फिर इवन ड्रिंकिंग वाटर इज अ बिग प्रॉब्लम. For that sort of an issue, I will say that please consult a psychologist one-on-one अगर इतना severe है. But otherwise अगर आपको लग रहा है कि you get an intuition that the child will have it, लेकिन resist कर रहा है, तो suppose he does not like soft things, तो उसको वैसे भी hands में भी उस चीज का sensory experience दो ताकि उसकी body used to हो जाए. तो अगर रोटी से प्रॉब्लम है, have the child play more with clay. अगर उसको कोई हार्ड, जैसे एप्पल आप उसको क्रंची लगता है, ऐसा लगता है, तो हैव देम गिव देम अ बोल ऑफ चिप्स कि वो उसको टच करें, खिलें, टू गेट देम यूज टू दैट टेक्सचर मोर. क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें उसको अपनी माउथ में ही डालने से प्रॉब्लम है. इट कुड बी ऑल ओवर द बॉडी कि हमें नहीं अच्छा लग रहा. कुछ बच्चों को लेबल से, जो टी शर्ट के पीछे लेबल लगा होता है, बहुत इशू आता है बिकॉज दे डोंट लाइक दैट टेक्सचर ऑन देयर बॉडी. So familiarize them, उनको उस texture की feel दो through other ways also. Very, but I have, now that you mentioned, मैंने भी realize किया कि even when he is finger painting or anything, उसको अच्छा तो बहुत लगता है finger painting because of the colors, but the moment he is done with that, चाहे कुछ हो रहा हो, पहला काम उसको हाथ धुलवाओ, हाथ धुलवाओ, हाथ धुलवाओ, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं types. So I think that's an overall वो sensory चीज and multiple चीजों से tackle करना पड़ेगा. Okay, makes sense. Another thing, क्योंकि again we are talking to an audience जिसका age group 2 to 4 है, a lot of them might be planning another kid.
right? So Yeah. there are questions around sibling rivalry. Yeah, they might already have a younger kid. तो कैसे सिबलिंग राइवलरी इज ऑल्सो समथिंग, आई डोंट नो हाउ कॉमन इट इज, लेकिन कैसे डील करना चाहिए या कैसे ईज आउट करना चाहिए बच्चों को इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अनदर सिबलिंग अराउंड देम? Okay. See, again, it is not a very rare thing. होता है. Some children display it more. Some children tend to get over it by themselves. But तरीके हैं. Number one, इसमें parents का contribution is very important. प्लीज डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन. हम बहुत छोटी छोटी बातें भी ऐसे कह देते हैं जो बच्चे के माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं, बट हम भूल जाते हैं. और यू नो समथिंग एज सिंपल एज दैट इफ यू आर कॉलिंग योर सन, अगर आप अपने बेटे को हमेशा चैम्प बोल रहे हो, यू नो हे चैम्प, हाउ यू चैम्प, द अदर वन फील्स कि मैं लूजर हूँ. हमारा वो इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम एक बच्चे को ऐसा निकनेम या फिर कभी किसी को स्मार्टी बोल देंगे, एक लड़की को क्यूटी बोल देंगे, तो दूसरा ऑलवेज फील्स लेफ्ट आउट. So please be very mindful. I know this is a little difficult because we are coming out of a place of love, but young age में ये बच्चों को affect कर देता है. Don't compare them. And secondly, उन हर एक में कोई individual strength होती है, उसको highlight करो, उसको praise करो. In the way that I have told you कि praise भी कैसे करना है, overdo नहीं करना. But what I'm saying is celebrate their individuality. एक sibling को ये नहीं लगना चाहिए कि वो दूसरे से कम है. In some households where children are living with their grandparents also, कभी कभी ये होता है gender preference होती है. तो कभी ये हो सकता है that you wanted a boy and there's a granddaughter in the house. तो प्लीज थोड़ा सा दादा दादी को भी, नाना नानी को भी इन चीजों के बारे में सेंसिटाइज करना पड़ेगा, वरना जो बच्चे को थोड़ा अनवांटेड फील कराया जा रहा है वो अपना सारा राइवलरी, सारा अग्रेशन सिबलिंग पे निकालेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then this used to happen in my house also. I am the younger sibling. पर हमेशा ये होता था, मेरे को leverage दिया जाता था, मेरे को हमेशा protect किया जाता था, and my elder brother used to get scolded, which did not sit very well with him. तो please never, you know, always take the side of one child. दूसरे में ये बहुत ज़्यादा anger produce करता है. And if you are planning another baby, one thing you can do is कि पहले से ही, you know, when the mother's bump starts showing, have your child talk to the baby in the womb. वहीं से उसे prepare करना start कर दो. You are going to be a big brother or you're going to be a big sister. So what do you think आप क्या क्या करना चाहोगे? And when the baby comes, involve your child in taking care of the small baby. They feel, you know, very proud कि अच्छा मेरे से छोटा कोई है and I can do something for them. तो उनके लिए if they are going for a bath, तो उनके लिए सारा उनका आउटफिट, उनका डायपर, सब कुछ वो पाउडर, क्रीम, सब कुछ सेट आउट करने में योर चाइल्ड शुड हेल्प. तो इससे क्या होगा, राइवलरी कम होती है, दे स्टार्ट केयरिंग फॉर द चाइल्ड. और कभी कभी किन्हीं केसेस में व्हेन यू नो वन चाइल्ड इज 4, वन चाइल्ड इज 6, कम एज गैप है या ऐसे और लड़ाई हो रही है, तो ट्राई करो लेट देम सॉर्ट इट आउट ऑन देयर ओन. हर बार पेरेंट्स को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती अनलेस दे आर हिटिंग ईच अदर. तब तो यू हैव टू स्टॉप इट, लेकिन लेट देम डू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग. हमेशा डोंट ट्राई एंड रन एंड सॉल्व थिंग्स फॉर देम, दे विल नॉट लर्न टू डू इट ऑन देयर ओन अदरवाइज. अनदर थिंग, प्लीज अगर आपको दिख भी रहा है कि एक बच्चे की गलती है एंड द अदर हैज बीन विक्टिमाइज्ड, उसकी गलती नहीं थी, जिसकी गलती है उसको सामने मत डांटो, क्योंकि दूसरा बच्चा फिर हमेशा यू नो टीज करेगा. तो इसलिए टेक देम टू अ रूम, talk to them calmly कि अच्छा नहीं था, you know, as a younger brother also you have to respect, या as an elder brother also you have to take care of your younger one. तो बस सामने किसी को ऐसा मत फील कराओ that they are inferior to the other one. That is all. Yeah. और since you specifically mentioned ये small age group वाला as in small age difference वाला scenario, तो whether it is siblings या अपने friends या similar age group के जो peer group होता है उसके साथ जब बच्चे खेलते हैं, तो अभी शेयरिंग इज समथिंग जो बहुत नेचुरली नहीं आता बच्चों में, राइट? के दे आर पॉसेसिव अबाउट देयर ओन थिंग्स. तो कैसे, बट नाउ दैट दे आर गोइंग टू स्टेप आउट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो धीरे धीरे करके कैसे ये शेयरिंग का हैबिट डेवलप कर सकते हैं बच्चों में? ओके, हाँ, तो लाइक यू सेड शेयरिंग इज नॉट कॉमन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड टिल द एज ऑफ 2 या 2 years and 6 months तब तक बच्चे पैरेलल प्ले करते हैं. मतलब यू माइट ऑब्जर्व कि वी विल सिट विद अदर चिल्ड्रन, बट वो अपना कर रहे होंगे और बाकी बच्चे भी अपना काम कर रहे होंगे. अभी वो साथ में कोऑपरेट करके नहीं खेल सकते. तो द एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ कि हमारा बच्चा खुद से शेयर करेगा इज रॉन्ग. अगर हम 4 या 5 साल के बच्चे को देखेंगे, तब भी इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली दे विल बी डूइंग सिलेक्टिव शेयरिंग. उनके कुछ कुछ लोग होंगे जिनको वो शेयर करने में ओके होंगे,
और उनका कुछ कुछ ही ऐसा सामान होगा जो वो शेयर करने में ओके होंगे. सो इट इज सिलेक्टिव. ये इसलिए होता है क्योंकि अभी बच्चों में एम्पैथी नहीं डेवलप हुई होती. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्किल. तो अभी वो फील नहीं कर सकते कि दूसरे को भी चाहिए. तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि माई 3-year-old विल जस्ट पिक अप द टॉयज एंड गिव टू another person, it might just be his favorite person जिसको वो दे रहा है, वरना वो नहीं देना चाहेगा. They are very possessive. But still, if we want, there are a few ways. Number one, अगर दो बच्चे साथ में खेल रहे हैं and you feel that your child has a concern कि वो नहीं share करेगा, put a timer. And with the timer, जैसे the kid gets it for 3 minutes and then उसको 3 मिनट के लिए देना है. What this does is कि जब बच्चे को पता है कि मैंने दे तो दिया, बट अब जब फिर से 3 मिनट्स बाद टाइमर मिलेगा तो मुझे वापस जब टाइमर बजेगा तो मुझे वापस मिलेगा मेरा टॉय. तो उसको ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि गया तो गया. टाइमर का मतलब है देना और टाइमर का मतलब है मिलना भी. सेकेंडली, अगेन आई से पेरेंट्स कैन टीच अ लॉट. तो सपोज यू आर हैविंग एन आइसक्रीम और बच्चा साथ में बैठा है, तो हाईलाइट करो ये वर्ड. यू टेल देम कि हियर डू यू वांट अ बाइट, मम्मा वांट्स टू शेयर इट विद यू. अब वो आइसक्रीम चॉकलेट को मना नहीं करते यूजुअली बच्चे, दे विल टेक इट. देन आस्क देम कि मैंने आपसे शेयर किया, हाउ डिड यू फील, एंड दे विल बी सो हैप्पी कि किसी ने मेरे साथ शेयर किया. तो जैसा वो रिसीव करते हैं, दे आर वेरी सिक्योर इंडिविजुअल्स, तो वो खुद में जेनरस बनेंगे बड़े होते होते. देन अनदर वेरी सिंपल थिंग यू कैन डू इज कि अलाउ देम टू थिंक ऑफ सॉल्यूशंस देमसेल्व्स. सपोज आप घर में केक बना रहे हो और हम केक बैटर मिक्स कर रहे हैं. यू टेल योर चाइल्ड कि हम टेबल पे बैठे हैं और एक ही स्पून है, तो क्या करें. ही माइट जस्ट से कि पहले आप करो फिर मैं करूंगा, या पहले मैं करता हूँ फिर आप करना. देन यू अगेन हाईलाइट, ओके सो वी कैन शेयर, उससे हमारा काम बन जाएगा. सो लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स विल हेल्प. ये सारी चीजें ऑनगोइंग है. यू कांट मैजिकली एक्सपेक्ट एक दिन आपका बच्चा बस थर्ड बर्थडे आ गया कल से सब शेयर करने लगेगा. आई थिंक इट्स That's why I think advice from expert helps. वरना क्योंकि there is so much, यानी एक दिन you'll read something and you'll be like हाँ this sounds perfect, and then दूसरे दिन आप किसी और को कुछ करते हुए देखोगे या कोई आपको टोक देगा या आपके बच्चे का कोई behavior होगा and you'll be like oh god I am doing it all wrong. So it's difficult. I say that reading is not wrong. Please read. It makes me very happy when parents read about parenting. But अपने ऊपर उतना ही लो जितना यू कैन डू. ऑलवेज रिमेंबर, और भी बहुत काम है अदर देन अपब्रिंगिंग. तो जितना कंसिस्टेंटली कर सकते हो. अगर आप 3 चीजें, जैसे आपने आज के वीडियो में से सपोज योर अ पर्सन डिसाइड्स टू टेक लेबल्ड प्लेस एंड नॉट कंपेयरिंग एंड सिबलिंग राइवलरी कम करना, स्टिक टू इट. जब आप ये चीज 1 month कर लोगे, इट विल बिकम अ हैबिट. तब कोई और नई चीज ट्राई करना स्टार्ट करो, बट छोटे छोटे बिट्स में. लाइक ऑल पेरेंट्स आर डूइंग फाइन. तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा है वही फॉलो करना है. जस्ट टेक फ्रॉम इट व्हाट यू थिंक यू रियली नीड. दैट्स ऑल. Actually, sometimes as mothers specifically, क्योंकि we are so hard on ourselves, यानी even someone telling us कि हाँ this is normal, this is fine, you're doing fine, तो वो ही काफी हद तक helps, and then our approach also automatically changes. So that really helps. And like we are saying कि इतना सारा information overload है, it's good to be aware and all. Same scenario अभी बच्चों के साथ भी है, right? There's so much available for them, so much in terms of technology also, in general also. तो ऐसे scenario में obviously times have changed, यानी हम लोग completely we can't be stubborn about the fact कि नहीं मुझे चलो screen time is one thing, but in general के technology से एकदम ही अलग रखेंगे. Online classes हो रहे हैं, तो ऐसे scenario में हाउ डू वी एंश्योर, क्योंकि हम सबको पता है कि स्क्रीन्स का खुद का डिसएडवांटेज डेफिनेटली है इफ ओवर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट. तो हाउ टू ट्रेड दैट थिन लाइन जहाँ पे हम लोग उनको कंप्लीटली भी वो नहीं रख रहे हैं, एलियनेट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल एक मॉडरेशन मेंटेन कर रहे हैं. Okay, this issue of screen time I have seen come up like anything अभी लॉकडाउन में. बट अगर हम बहुत लॉजिकली सोच के देखें इस बारे में, तो सी इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग. कुछ बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो क्लासेस आर ऑनलाइन, उनका कोई रूटीन नहीं है, सो दे आर बोर्ड. एंड जैसे ही बच्चा बोर्ड होता है वो स्क्रीन पे जाता है, क्योंकि स्क्रीन इतनी एंगेजिंग चीज है. ऑडियो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, आप टैप करोगे कुछ हो रहा है. सो इट इज वेरी नेचुरल. नंबर 3, स्कूल नहीं जा रहे तो घर आके थके नहीं हुए, नैप नहीं ले रहे, फिर बाहर नहीं जा सकते तो शाम को खेलने नहीं जा रहे, अगेन नथिंग टू डू और सामने पड़ी है स्क्रीन.
And number 4, this might not be taken very well by some parents, but adults are always using screens. You know, हम अपने फोन पे लगे हुए हैं, बच्चा हमसे बात करने आ रहे हैं, वी आर टेलिंग देम वेट, या फिर वो देख रहे हैं कि ये टैब पे कोई मूवी देख रहे हैं, तो दे विल थिंक कि यार ये एडल्ट्स हमेशा स्क्रीन पे होते हैं, ये तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है. तो फर्स्टली हमें अपनी हैबिट एज एडल्ट्स एज पेरेंट्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. अगर आपको काम करना भी है, एंड आई अंडरस्टैंड कि 8 आवर्स 9 आवर्स हमें लैपटॉप पे लगे रहना पड़ता. हाय हाय अथर, You want to say hi, Athar? Say hi. हेलो, हाउ आर यू? How are you? He's also आई एम asking. वेरी. हाँ. He's also asking how he came to show me his Play-Doh ka chapati. वंडरफुल. क्या बनाया आपने? हाँ जी, Chapati. चपाती. रेड चपाती, ब्यूटीफुल. So sorry about this. नहीं, But नहीं, it's been an hour ना, तो उसको अभी हो गया, he got jittery के बस. I get it. हाँ, I was saying that adults have to change their own habit, and अगर आपको काम करना भी है 8 hours 9 hours, तो you explain to your child, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास होती है बेटा 1 hour की 2 hour की, वैसे ही मम्मा का काम ज्यादा है, पापा का काम ज्यादा है. Don't leave them hanging. Another very important thing is कि the problem, देखो screens तो अब आएंगी, we cannot do away with screens, हम 21st century में हैं, technology is the future. So it's okay. Don't be so hard on yourself. If you feel कि बच्चे को 1 hour की screen देख के you can take a nap, you can take a break. Do it for your own peace of mind. कुछ नहीं होगा. What is important is कि हमें बच्चों का passive screen time कम करना है और active screen time increase करना है. इसका ये मतलब है, पैसिव मीन्स कि बच्चा बस बैठा है, सामने एक वीडियो चल रहा है और उसका कोई इमेजिनेशन नहीं यूज हो रही, कोई क्रिएटिविटी नहीं यूज हो रही. इंस्टेड अगर स्क्रीन टाइम देना है, तो आई रेकमेंड दैट यू पुट ऑन समथिंग जिसमें बच्चे की साइड से भी कोई एक्टिविटी हो, बच्चे की साइड से भी कोई रिस्पॉन्स हो. सपोज यू वांट टू टीच योर चाइल्ड अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, या कुछ भी कोई भी स्किल सिखानी है, सैंडविच मेकिंग सिखानी है, पुट इट ऑन द स्क्रीन. योर चाइल्ड हैज टू फॉलो द स्टेप्स, योर चाइल्ड हैज टू डू द सेम थिंग. तो फिर हम उसके ब्रेन को, हम उसकी इमेजिनेशन को एक्टिवेटेड रख रहे हैं. अदरवाइज पुट ऑन थिंग्स लाइक अर्थ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप उसको चला के बिठा दोगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. सिट विद योर चाइल्ड, आस्क क्वेश्चंस की, एंड शो अ सेंस ऑफ वंडर कि अच्छा अर्थ में ऐसा होता है, हिल्स में ऐसा होता है, एनिमल्स ऐसा करते हैं. You get your child thinking, which is more important. Screens are not going away. So just monitor कि वो क्या देख रहे हैं, and try to keep it as active as possible. Yeah. Okay, it's a win-win then. Absolutely. So I think more or less we have covered everything. Just one last question, जो I think एक basic concern होता है about the attention span of the babies इस age group के. Are there some things we can do proactively to increase that attention span? चाहे वो activities कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, usually होता है ना 10-15 minute is what they. Yeah. See, अगर आप एक 4 साल के बच्चे की बात कर रहे हो या 5 साल के बच्चे की बात कर रहे हो, 15 minutes is their maximum attention span. उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी गलत है. If you're talking about a 3-year-old, तो उनका 6 minutes to 8 minutes attention span होगा. What I mean by attention span is कि उस टाइम पे they are actually interested और वो actually engaged हैं उस एक्टिविटी में. आप उन्हें 1 घंटा बैठने को कहोगे, वो बैठ जाएंगे, but they are not benefiting out of it. तो बायोलॉजिकली बच्चों के ब्रेन ऐसे वायर्ड होते हैं दैट अप टू 15 मिनट्स या 20 मिनट्स ही उनका अटेंशन स्पैन रहता है. नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज इट अ लिटिल बिट, क्योंकि वो स्कूल जाएंगे तो दे विल हैव टू सिट फॉर लॉन्गर. With online classes and all, parents are a little worried के बैठते नहीं है ना बच्चे through the class. And most of the classes are at least 40-50 minutes long. हालांकि स्कूल ध्यान रखती है कि 10-15 minutes की एक्टिविटीज हो usually, but still like. See, so try and give your child movement breaks between activities. अगर break भी उसकी वहीं पे बैठ के and the child is eating there only, it is not really a break in that sense, क्योंकि बच्चों को movement की बहुत ज्यादा need होती है. हमेशा movement थका देती होगी, लेकिन बच्चों को वो active करती है. तो try and give them movement breaks. Again, make it fun.
अगर आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन इज से 12 मिनट्स 13 मिनट्स और हम उसको 16-17 मिनट्स पे लेके जा रहे हैं, तो यू कैन प्ले दिस गेम. इट इज कॉल्ड बीट द क्लॉक. तो Okay. उसमें क्या करना होता है, यू सेट अ टाइमर एंड यू टेल योर चाइल्ड कि हमें ये करना है, चाहे उसके साथ में बैठ जाओ, एंड बिफोर इट रिंग्स लेट्स सी कैन यू डू इट और कैन यू नॉट डू इट. तो Okay. एक सेंस ऑफ, जब थोड़ा सा एक्टिविटी का सेंस आ जाता है, चैलेंज का सेंस आ जाता है, सो दे स्टार्ट टेकिंग इट एज अ गेम. एंड धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके अटेंशन स्पैन बनाओ. यू कैन टेक इट फ्रॉम 10 to 20. Right. Another thing that really helps is give them multi-sensory exposure. What I Okay. mean is, suppose आपका बच्चा alphabets लिखना सीख रहा है and he is learning to write S. ठीक है. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली यही करते रहोगे कि बच्चा पहले पेंसिल से एस लिख रहा है या फिर वो कलर से लिख रहा है, फिर वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, इट इज एक पॉइंट के बाद इट गेट्स बोरिंग. तो मल्टी इन द सेंस यूज प्ले-डो. ही कैन फील इट. उससे एस बना रहा है. और यूज कार्ड्स. ही कैन प्ले विद इट एंड देन ही कैन लाइन अप हिज कार्ड्स टू मेक एन एस. You can put a little paint on the toe nail, और उससे उसको मिट्टी में एस ड्रॉ करना है. तो जितनी ज्यादा एक टाइम पे सेंसेस एंगेज्ड होती हैं एक एक्टिविटी में, उतना कम चांस होता है डिस्ट्रैक्ट होने का. एंड सेकेंडली, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दे आर चिल्ड्रन, और अभी वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं. दे आर वेरी क्यूरियस. तो वी डोंट वांट टू किल दिस क्यूरियोसिटी. तो अगर एक जगह से हटके वो कोई डिस्ट्रैक्शन को ट्यून आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ी देर उधर देखना चाह रहे हैं, allow them this liberty. It's okay. But if you can, reduce the distraction. जहाँ पे बच्चा काम कर रहा है, ट्राई करो कि वहाँ पे टीवी ना प्ले हो रहा हो. वो तो कॉन्स्टेंटली टीवी को ही देखना चाहेगा, because that is anyway more interesting. True, true. Don't kill their sense of curiosity. करना चाह रहे हैं, it is brilliant. हाँ, हमको तो डिसिप्लिन भी कर देना है ऑल ऑफ दैट. नो बट या यू आर राइट, क्योंकि वाटर प्ले मैंने नोटिस किया है, चाहे अदर सैंड से खेल रहा हो, वाटर से खेल रहा हो, दोज आर द एक्टिविटीज वेयर उसको यानी एट द एंड ऑफ इट वी विल हैव टू टेल हिम कि बस चलो नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स और लेट्स क्लीन अप. तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट आइडिया टू इनकलकेट. Great, yeah, Asmita, thank you so much. Yani, we've covered so much, and personally for me also, this was so enlightening. Yani, as a mother, so thank you so much for that. और इसके अलावा I'm sure there's so much more. यानी as parents we struggle with so much more. तो I would definitely recommend everyone के आपका जो Instagram page है, they should follow it. They'll get a lot of information. Q&A आप करते रहते हो, so any specific queries they can reach out to them to you. And उसके अलावा if there are like acute cases जहाँ पे they need a one-on-one counseling, because that really helps at the end of the day. As parents also एक वो sahi information is also a big deal these days, right? So if anyone wants to reach out to you for that, I'll definitely link your handle niche, and I'll also leave your email ID. Like you said, that's not an issue, so I'll leave that as well. And uske alawa we will hopefully reconnect sometime later, because I'm sure we'll at different age groups we will keep on having different challenges, and inputs from an expert like you definitely help. So thank you, Prachi. Thank you so much. Otherwise, thank you so much for your time. We have overshot the time, but you've been very generous. You've taken out the let me know if there are more questions. I'll be happy to come and address them, because I understand parents' anxiety. And it has also been so wonderful for me learning from the questions. क्योंकि आजकल क्या concerns चल रहे हैं, अभी क्या problems आ रही हैं, वो मेरे लिए highlight होगी. So I'm sure I love to help parents as much as possible. And we also as parents would need, क्योंकि क्या होता है कि जैसे I myself can feel कि 2 साल पहले इसमें से बहुत सारी चीजें थी जो मैं बहुत mindfully I used to do, but then over a period of time, because you get caught up with so much, and plus it's very difficult कि consistently करते रहो. But then when you talk to someone, you realize कि हाँ भाई, we stopped doing this, but we must do it. It's a long-term thing. So I'm glad we connected at this point, and hopefully we'll do it pretty sometime soon. So thank you so much once again. ठीक है? All right, Prachi. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye.